السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مجھے آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن دینی تھی، ویسے میں اپنے دوسرے چینل پر بتا چکی ہوں اس بارے میں، لیکن مجھے یہاں پر بھی بتانا تھا، بہت سے لوگ اس چینل پر شاید نہ ہوں۔ میرے فادر کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، تو ان کا بھی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے، اور مطلب میں ان کے ساتھ ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس جانا اور ٹیسٹ کروانا یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو میں اس سلسلے میں کافی بزی ہوں۔ پھر گھر میں بھی ظاہر سی بات ہے، یہ ایک ٹینشن والا ماحول چل رہا ہے۔ اس میں ریکارڈنگز آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اتنے تواتر سے نہ ملیں، اور پچھلے کچھ دنوں سے یہی سب کچھ چل رہا تھا، تو میں اسی میں بزی تھی۔ لیکن اب وہ فائنلی ڈائگنوز ہو گیا ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ ہمیں بہت جلدی کروانا ہے، تو مجھے جب بھی ٹائم ملے گا اور سب کچھ خیریت رہے گی انشاءاللہ، تو میں ایپیسوڈ ضرور دوں گی آپ لوگوں کو، ادھر یا پھر اس دوسرے والے کا، خوابوں کا شیش محل کا، جس کا بھی ہو سکا میں ریکارڈ کروں گی۔ اور بس میرے والد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ان کا سرجری وغیرہ ہو جائے تو وہ جلدی سے اس کے بعد ریکور کر لیں، سکسیسفل ہو جائے، اور اللہ میاں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور جب ان کی سرجری ہوگی میں جب بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گی، اور آپ لوگ بس انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ابھی ہم آگے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 8۔ جیپ چھوٹی ہونے کے باوجود طاقتور اور برق رفتار تھی۔ سرنگ چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی اور اتنی کشادہ تھی کہ 2 جیپیں آرام سے پہلو با پہلو چل سکتی تھیں۔ اندر ہی 10 گز کے فاصلے پر دیواروں کے ساتھ طاقتور لائٹس نصب تھیں۔ ان کی روشنی میں سرنگ کا ایک ایک حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اندر گھٹن کا احساس نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کہ اس میں تازہ ہوا کی آمد و رفت کا خیال رکھا گیا تھا۔ سرنگ کوئی میل بھر لمبی تھی، اور ہم 5 منٹ بعد اس کے دوسرے سرے تک جا پہنچے تھے۔ یہ کوئی وسیع غار تھا جسے مناسب رد و بدل کے بعد ہال کی شکل دے دی گئی تھی۔ ہال نہ صرف جیپوں کی پارکنگ کا نظام تھا، بلکہ ایک طرف ورک شاپ اور پیٹرول بھرنے والا پمپ بھی موجود تھا۔ جیپ سے اتار کر ہمیں پیدل ہال یا غار کے باہر لایا گیا، اور میں ایک بار پھر حیران ہوا تھا۔ پہلی بار مجھے اس خفیہ بندرگاہ نے حیران کیا تھا، تو دوسری بار مجھے چٹانوں کے دوسری طرف کے نظاروں نے حیران کر دیا تھا۔ ہم بلند پہاڑی کے اوپری حصے میں کھڑے تھے۔ یہاں مجھے درست طور پر معلوم ہو گیا کہ ہم ایک ہی جزیرے پر تھے۔ کئی سمتوں میں بعید فاصلے پر سمندر اپنی جھلکیاں دکھا رہا تھا۔ ہم سطح سمندر سے کوئی 2000 فٹ کی بلندی پر تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سرنگ اس قدر بلندی پر جا کر نکلے گی۔ یہ شاید سرنگ کی ساخت کا کمال تھا کہ مجھے جیپ کی بلندی کی طرف جانے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ نیچے کا منظر اتنا سحر انگیز تھا کہ آدمی کھو کر رہ جائے۔ اس طرف بے حد گھنا جنگل تھا، جس میں بے شمار اقسام کے بلند و بالا درخت اگے ہوئے تھے۔ ان درختوں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ جنگل کے درمیانی حصے میں ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ شاید اس طرف پانی کا کوئی ذخیرہ تھا جس سے صبح سویرے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ جنگل کے بعد سرسبز پٹی کے ساتھ بے شمار مکانات نظر آ رہے تھے، اتنی دور سے کھلونوں جیسے لگ رہے تھے۔ آبادی کا یہ سلسلہ ساحل سے تھوڑی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک اچھا بھلا قصبہ تھا۔ سیاہ فام گارڈ بولا، کھڑے کیوں ہو، چلو۔ پیدل؟ عبید صلاح نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، تمہارے لیے رولز رائس آئے گی، پیدل چلو، لارڈ کی اولاد کہیں کے۔ چلو۔ عبید نے شانے اچکائے۔ لیکن میں راستے میں بھاگ نکلا نا، تو شکوہ مت کرنا۔ میں اس کی بات پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اس حالت میں بھی زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ اس کے چاروں طرف اس کے خون کے پیاسے دشمن تھے، اور بچنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی، اور نہ ہی فرار کی کوئی ترکیب۔ ہم نے اس مختصر سی سڑک پر مارچ شروع کر دیا، جس کے کنارے گھنے اور بلند درخت اگے ہوئے تھے۔ جو جگہ درختوں سے بچ گئی تھی، وہاں رنگ برنگے پھولوں کے پودے تھے۔ درختوں پر متعدد پرندے چہچہا رہے تھے، لیکن مجھے کوئی جانور نظر نہ آیا، سوائے خرگوش نما جانور کے، جو بلی سے ذرا ہی بڑا تھا۔ سڑک کے اطراف میں کچی زمین سے بخارات اٹھ رہے تھے۔ فضا میں کسی قدر حبس اور گرمی تھی۔ اندازہ تھا کہ دن بڑھنے کے ساتھ ساتھ گرمی میں اضافہ ہوگا۔ گویا یہ جزیرہ خط استوا کے علاقے میں ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ سعودی عرب کے شمال مشرقی ساحل کے آس پاس پایا جاتا ہوگا۔ اس خطے میں بھی گرمی اور حبس ہوتا تھا، لیکن یہاں بارشوں کا اوسط کم تھا، جبکہ اس جزیرے کے اس تر و تازہ جنگل کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہاں باقاعدگی سے بارش ہوتی ہوگی۔ اس قسم کی آب و ہوا افریقہ میں صومالیہ کے نچلے حصے میں پائی جاتی تھی۔ اس خطے کی لائن میں سری لنکا اور مالدیپ بھی آتے تھے، جہاں سارے سال ہی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ علاقے خط استوا سے خاصے فاصلے پر ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میں نے سفر کی سمت کے بارے میں غلط اندازہ تو نہیں لگایا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جنوب مغرب کی طرف آئے تھے۔ در حقیقت یہ لوگ جنوب کی طرف سفر کرتے رہے ہوں، اور ہم اس وقت بحیرہ ہند کے کسی جزیرے میں ہوں۔ کم از کم اس کی آب و ہوا سے یہی محسوس ہوتا تھا۔ بحیرہ عرب میں اس قسم کے سرسبز جزائر نہیں ملتے۔ دوسرے حساس سمندر میں قزاقوں کی طرف سے یوں کھلے بندوں
अड्डा बनाकर रहना हैरत अंगेज था। इसके बरक्स वो बहरा हिंद की बेहिसाब वसतों में आराम से रूपोश रह सकते थे। इस खत्ते में बेशुमार वीरान जजायर मिलते हैं जो समंदरी रास्तों से हटकर वाक़ हैं। रास्ते में तीनों गार्ड्स मुस्तकिल चौकिन्ना रहे थे। वो हमारे दाएं बाएं चल रहे थे और एक अकब में था। अचानक एक तैयारा शोर मचाता हुआ हमारे सरों पर से गुजर गया। ये दरमियानी किस्म का तैयारा था जो मुसाफिरों और सामान दोनों की बारबरदारी में इस्तेमाल होता था। देखते ही देखते तैयारा आबादी के मशरक़ी सिमत में घने दरख्तों में गायब हो गया। गालिबन उन्होंने दरख्तों के दरमियान कोई खुफिया एयरफील्ड भी बना रखा था। फ़िज़ाई राब्ते के बगैर उस दूर दराज खत्ते में रहना नहायत दुश्वार था। अब सवाल यह था कि यह तैयारा आया कहाँ से होगा। क्या उसने किसी कानूनी एयरफील्ड से परवाज़ की होगी या ये कज़ाक़ों के किसी दूसरे अड्डे से आया होगा। ये मुमकिन था कि तैयारे ने किसी प्राइवेट एयरफील्ड से परवाज़ की हो जहाँ इस किस्म के गैर कानूनी कामों में आसानी रहती है। हम तकरीबन आधे घंटे बाद नीचे आबादी के करीब पहुंचे तो वहाँ मशरक़ी सिंध से खुली जीप में चंद अरब गुजरे। उन्होंने कीमती लिबास पहन रखे थे और उनके हुलिये से अमारात टपक रही थी। ये उस तरफ से आए थे जहाँ तैयारा उतरा था। यह मुमकिन था कि तैयारे में अरब आए हों, लेकिन उन अरबों का इस जजीरे पर क्या काम था। वो किसी मोअज़्ज़िज़ मेहमान की तरह आए थे। उनकी जीप को एक मकामी कारकुन ड्राइव करा था। उसने नीली वर्दी पहन रखी थी। अरब बेहद खुश थे और हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। उन्हें देखकर उबैद सलाह की आंखों में गुस्सा चमकने लगा। उसने नफरत भरे अंदाज में ज़मीन पर थूका। आगे चलो। अकब से गार्ड ने उबैद सलाह की कमर पर राइफल की नाल दे मारी। कुछ देर बाद हम खारदार तारों से घिरे एक अहाते में दाखिल हुए जिसके वस्त में लकड़ी की बैरक्स थी। ये जगह कोई कैद खाना मालूम होती थी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। पहले हमें एक सफ़ेद फाम शख्स के सामने पेश किया गया जो उस जेल का इंचार्ज निकला। कसरत मैनौशी से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और गालों का गोश्त लटक आया था। बोलिए से को बुलडॉग लग रहा था। कौन है ये? उसने गुर्रा कर पूछा। जॉन ग्रे ने पकड़ कर लाए हैं। इन्हें अगले हुक्म तक यहाँ कैद रखने को कहा गया है। सयाह फाम मुहाफिज ने अदब से कहा। ये सुनते ही उसका चेहरा बिगड़कर मजीद बदसूरत लगने लगा। उसने खुद मुझसे क्यों नहीं कहा? ये बात तो वही जाने जनाब। मुहाफिज यकदम खाइफ नजर आने लगा। तो तुमने उस खंजीर की तवज्जो क्यों नहीं दिलाई? जेल इंचार्ज ने अचानक उठकर मुहाफिज को पूरी कुव्वत से थप्पड़ दे मारा। वो ताकतवर आदमी था। सयाह फाम वजनी और मजबूत होने के बावजूद लड़खड़ाकर पीछे गया था। उसका स्याह चेहरा मजीद तारीक हो गया, लेकिन इस बेइज्जती पर उसने मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकाला। उबैद हिकारत से उसे देख रहा था, जबकि मेरे ख्याल में इंचार्ज ने दरअसल हमें मरूब करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरा ख्याल गलत था। उसकी खबासा से अभी हमें वास्ता ही नहीं पड़ा था। सॉरी डियर डॉन, सयाह मुहाफिज ने कहा। वो मुस्कुराने लगा। मैं ज़रा नए कैदियों से अपना तारुफ करा दूँ। लेकिन ग्रे साहब। भाड़ में जाए तुम्हारा ग्रे साहब, और तुम भी दफ़ा हो जाओ। सयाह फाम गार्ड अपने साथियों समेत दफ़ा हो गया। इंचार्ज की घंटी बजाते 2 मुसल्लह अफराद अंदर आए तो डियर डॉन ने हुक्म दिया, इन्हें मैदान में ले चलो। मैदान बैरकों के अकबी हिस्से में था। वहाँ लोहे के पाइप से बने झूले नुमा साफ के नमूने खड़े थे जिनसे लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। इनकी कमीज़ें उतार दो। डियर डॉन ने अपने आदमियों को हुक्म जारी किया। तब मेरी निगाह उसके हाथ में सांप की तरह बल खाते हंटर पर पड़ी। अगले लम्हे मैं समझ गया कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उबैद ने मज़ाहमत की तो गार्ड्स ने उसकी कमीज़ फाड़ दी। मैंने शराफत से कमीज़ उतार दी क्योंकि आधा दर्जन उठी हुई राइफलों के सामने मज़ाहमत का कोई फ़ायदा नहीं था। हमें हाथों से जंजीरों में बांध दिया गया। उबैद सलाह डियर डॉन को अंग्रेज़ी डिक्शनरी के मुंतखब अल्फाज से नवाज रहा था। इस जेल का उसूल है कि मैं यहाँ आने वाले हर नए कैदी से अपना तारुफ कराता हूँ, जिसके बाद उसके दिमाग के कीड़े झड़ जाते हैं। उसने हंटर को खोलकर झटका दिया। ये 3 फुट लंबा और खासा मोटा हंटर था। मुझे अपनी खाल की सलामती खतरे में नजर आने लगी, लेकिन उसने पहले उबैद को उसकी नज़मगोई का इनाम देने का फैसला किया। वो हमारे अक़ब में आया। उसने जिस तरह घुमाकर उबैद की पुश्त पर हंटर मारा था, उससे उसकी महारत का सबूत मिलता था। उबैद के जिस्म ने शदीद झटका लिया, लेकिन उसके लबों से ज़रा सी भी आह ना निकली। इस बात पर मुश्तइल होकर डियर डॉन ने अगला वार मजीद कुव्वत से किया। तीसरी बार भी वो उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलवाने में नाकाम रहा। उसने हाँफते हुए कहा, मैं 3 से ज़्यादा सर पे नहीं लगाता, वरना आज तुम्हारी चीखें पूरा कैंप सुनता। उबैद के होठों पर सुलगाने वाली मुस्कुराहट थी। चाहो तो ये काम आज करके देख लो, मेरे होठों से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। वो चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर मेरी तरफ नजर करम की और मुझे 3 बार अपनी पुश्त पर क़यामत सहना पड़ी। उस हंटर की ज़रब इतनी शदीद थी कि एक ही बार में खाल उधेड़ देती थी। मैंने दांत भींच लिए और कोशिश की कि उबैद की तरह मेरे होठों से भी कोई आवाज़ ना निकले। 3 ज़रबों के बाद मेरी पुश्त दर्द से तड़कने लगी थी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उबैद पर क्या गुजरी होगी। हमें खोल दिया गया और कमीज़ पहनने का हुक्म दिया गया। उसके बाद हमें एक बैरक में ले जाकर बंद कर दिया गया। बैरक्स पत्थर के ब्लॉक से बनी हुई थी। दरवाज़ों की जगह लोहे की सलाखों वाले गेट थे।
छत लकड़ी की थी, लेकिन इतनी ऊंची कि उस तक रसाई का सोचा ही जा सकता था। अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं था। अकबी हिस्से में रोशनदान था। जमीन से 8 फुट ऊंचे उन रोशनदानों में भी लोहे की इंच भर मोटी सलाखें नस्ब थीं। हमें जिस बैरक में बंद किया गया उसमें दोनों जानिब 10-10 कोठरियां थीं। ये 10 कोठरियां बमुश्किल 7 बाई 7 फुट की थीं। दीवारों के साथ 2-2 फुट चौड़ाई के 2 बिस्तर लगे थे। फुट भर ऊंचे लोहे के पाइप से बने पलंग जमीन में नस्ब थे। उन पर बदरंग और बदबूदार कंबल बिछे थे। सिरहाने के लिए उसी किस्म के तकिए थे। एक बिस्तर से आगे एक छोटे से डोल में पानी पड़ा था, जिसके साथ मग्गा था। यह हमारा नया कैद खाना था। गार्ड्स के जाते उबैद ने कहा, हरामी समझता किस तरह हमें मरूब कर लेगा। उसने वाज़ेह किया कि वो उस डियर डॉन के साथ क्या सलूक करेगा, उसे नाकाबिल अशात समझा जाए। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं तो तुम्हें निरा मल्ला समझता था, पर तुम तो जीदार आदमी निकले यार। जिंदगी में बड़े जख्म खाए हैं, इसीलिए आदत है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ यही हाल अपना भी है। जिंदगी ने सिवा जख्मों के और कुछ नहीं दिया। उसने एक सर्द आह भरी। दरवाजे की सलाखों से एक जोकर नुमा शख्स ने अंदर झांका। वो दुबला, पतला और छोटे से कद का स्यारा आदमी था। उसके नन्हे से चेहरे पर भारी भरकम चश्मा अजीब सा लग रहा था। मुहाफिज ने दरवाजा खोला तो वो अंदर घुस आया। उसके सफ़ेद कोट और हाथ में मौजूद मेडिकल बॉक्स से जाहिर था कि वो डॉक्टर था। उसका मेडिकल बॉक्स भी उसी की तरह खस्ता हाल था। उसे मेडिको टेप लगाकर कई जगह से जोड़ा गया था। उसने अंदर आते बेतकल्लुफी से बोलना शुरू कर दिया। अपन डॉक्टर वाडिया है, फ्रॉम बम्बई। लेकिन अपन ने 20 साल से बम्बई नहीं देखा। तुम नया आया है। जो भी बंदा नया इधर आता है उसे अपन का जरूरत पड़ जाता है। अब बताओ, पहले किसको देखने का है? इसे। मैंने उबैद की तरफ इशारा किया। पहले उसे नहीं, पहले से। डॉक्टर वाडिया बेचारा हम दोनों के दरमियान गर्दन घुमा रहा था। आखिर वो चिल्ला कर बोला, स्टॉप इट। दोनों को देखेगा। दोनों अपनी अपनी कमीज उतार दो। पहले तुम। मैंने उबैद की तरफ देखा। वो भी शरारत पर आमादा था। उसने कहा, नहीं पहले तुम। नहीं, पहले तुम। अरे मैं अपनी कमीज उतार देता हूं। जोकर डॉक्टर ने चिल्ला कर कहा और सचमुच अपनी कमीज उतारने लगा। उसने कमीज उतारकर अपनी पुश्त हमारी तरफ की। उसकी पुश्त पर मुतादिद लंबी लंबी लकीरें पड़ी थी, जैसे उसे भी हंटर से मारा गया हो। गोया कैंप का डॉक्टर भी बेचारा कैदी से कम नहीं था। ये मेरी गलतियों का नतीजा है जो मैंने नहीं की थी। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे साथ मेरी पीठ पर भी लकीरों का इजाफा हो जाए? इनकी तादाद तो खासी ज्यादा है। क्या इंचार्ज कैदी के साथ साथ तुम्हें भी अपने हंटर से नवाजता है? ऐसा ही समझ लो यार, किसी कैदी की गलती की सजा भी मुझे ही मिलती है। उसने दर्दनाक लहजे में कहा। क्या ख्याल है? मैंने उबैद की तरफ देखा। भगवान के लिए इसका विचार मत पूछो, तुम अपनी कमीज उतार दो। उसने तकरीबन गिड़गिड़ा कर कहा तो मुझे उस पर रहम आने लगा। मैंने कमीज उतारकर पुश्त उसकी तरफ कर दी और जब उसने कोई स्प्रिट किस्म की शय मेरे जख्म पर लगाई तो मेरे रहम के सारे जज्बात गायब हो गए। इतनी तकलीफ हंटर खाते हुए नहीं हुई थी जितनी उन जख्मों के इलाज से हो रही थी। अगले 2-3 मिनट तक मैं उस क़यामत खेज़ मरहले से गुजरा। खुदा खुदा करके उसने मरहम पट्टी मुकम्मल की। जानदार आदमी है तुम, डॉक्टर जोकर ने तारीफी अंदाज में कहा। इतना मार किसी और ने खाया होता ना और ऐसा जख्म होता तब तक रो रहा होता, पर तुम तो चहक रहा है साला। इसकी हालत मुझसे भी बुरी है। मैंने उबैद की तरफ इशारा किया। डॉक्टर जोकर ने उसकी फटी हुई कमीज उतारी तो बेख्तियार सीटी बजाई। अपन अपना सारा लाइफ में इतना गहरा जख्म नहीं देखा जो एक ही ज़रब में आया हो। डॉक्टर, तुम्हारी उर्दू तो बहुत साफ है। वो जरा झेप गया। अरे उधर बदर भाई की यतीम खाने में परवरिश पाई है तो मुसलमान, पर भगवान है, उसने मुझे डॉक्टरी पढ़ाई, शादी कराया, घर बना के दिया, और तुम यहाँ फंसे। मैंने कहा। उबैद ने स्पिरिट की कार्ड भी उसी सब्र से बर्दाश्त की थी। उसे हमारी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हम उर्दू में बात कर रहे थे। उसकी मरहम पट्टी से फारिग होकर डॉक्टर वाडिया ने गहरी सांस ली। ये सब अपने कर्मों का फल है। इधर इंडिया में डॉक्टर बहुत होते हैं और साले सब गरीब बीमार होते हैं। अमीर लोग बीमार ही नहीं होते, या होते भी हैं तो बड़े डॉक्टर लोग से इलाज कराते हैं। अपने पास कौन आता है? एक आदमी ने मेरे को दुबई ले जाने का लालच दिया और यहाँ ले आया। मैंने हंसकर कहा, नहीं बाबा, उसने अपने को दुबई पहुंचाया था, पर अपन के पास वीज़ा पासपोर्ट कुछ नहीं था। 4 महीने एक होटल पे डिश वॉशिंग करता रहा, फिर एक क्लिनिक में कंपाउंडर हो गया। बाद में पता चला डॉक्टर ही कंपाउंडर था और गलत धंधे करता था। क्लिनिक पर छापा पड़ गया। खुशकिस्मती से अपन छुट्टी पर था। वहां से जो भागा तो एक गलत आदमी के हाथ आ गया। उसने मुझे एक बार फिर स्मगल किया और अपने साथ इधर ले आया। यहाँ कर तुम्हें मालूम हुआ होगा कि तुम एक चक्कर से निकलकर दूसरे चक्कर में फंस गए हो। काश मैं दुबई में पकड़ा जाता।
2-3 साल जेल में गुजार कर अपनी रुक्मणी के पास चला जाता। रुक्मणी, यू मीन योर वाइफ? हाँ, पत्नी थी वो मेरी। अब ना जाने किसकी पत्नी होगी और कितने बच्चों की माँ होगी। उसने आखिरकार एक सर्द आह के साथ मरहम पट्टी मुकम्मल कर ली। वो खासा दुखी नजर आने लगा था। मुमकिन है वो अब तक तुम्हारी राह तक रही हो। ऐसा सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में होता है। कितना धोखा देते हैं फिल्म वाले। अरे बाबा, असली जीवन में सब कहाँ होता है। डॉक्टर रुखसत हुआ तो लाताल्लुकी से खड़े गार्ड ने ताला लगा दिया। डॉक्टर जिस तरह खुलकर बात कर रहा था, इससे जाहिर था कि गार्ड को उर्दू नहीं आती थी। डॉक्टर जाते जाते हमें कुछ दवाइयाँ भी दे गया कि वक्फे वक्फे से खाते रहें, यानी जब भी ज़्यादा दर्द महसूस हो। मैंने 2 गोलियाँ पानी के साथ निगल ली। उबैद ने उन्हें एक तरफ डाल दिया। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। अचानक उबैद ने कहा, ये डॉक्टर दिलचस्प लेकिन मजलूम आदमी है। मैं उछल पड़ा, इसलिए नहीं कि उसने ये जुमला कहा था, बल्कि इसलिए कि उसने ये जुमला साफ उर्दू में कहा था। तुम्हें उर्दू आती है? उसने सर हिलाया। मेरे साथियों में चंद पाकिस्तानी हैं, मैंने उनसे ज़ुबान सीखी है। मुझे उर्दू के अलावा फ़ारसी और अफ़गानिस्तान में बोले जाने वाली ज़ुबान दरी भी आती है। अरबी मेरी मादरी ज़ुबान है। इसके अलावा अंग्रेज़ी और किसी कदर फ्रांसीसी भी बोल और समझ लेता हूँ। बस एक ज़ुबान की कसर रह गई थी, वरना तुम हफ्त ज़ुबान कहलाते। हफ्त ज़ुबान? वो क्या होता है? मैंने उसे समझाया कि 7 ज़ुबानें जानने वाले अफराद को हफ्त ज़ुबान कहा जाता है। सिंध में सच्चल सरमद शायर थे जो 7 ज़ुबानें जानते थे। इसी बिना पर शायर हफ्त ज़ुबान कहलाते थे। उन्होंने उन तमाम ज़ुबानों में शायरी भी की थी। अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो एक ज़ुबान और सीखकर इस कमी को पूरा कर लूंगा, उसने खुशमिजाजी से कहा। फिर लेटते हुए बोला, उस बदबख्त ने हंटर से नाश्ता करा दिया था। अब खाने की तवक्को फजूल है, लिहाजा बेहतर है कि सोया जाए। चंद लम्हों बाद गार्ड ने आकर फिर दरवाज़ा खोला और एक शख्स ने ट्रे अंदर सरका दी, जिस पर मछली के तले हुए टुकड़े और कॉफ़ी रखी थी। खासा अजीब सा नाश्ता था, लेकिन जेल में मर्जी का मेन्यू कहाँ होता है। समंदर में रहने वाले मछली का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। इस आबो हवा में मछली का इस्तेमाल मुफीद होता है और सस्ता भी, क्योंकि समंदर में रहने वालों को उसका गोश्त ताज़ा और आसानी से मिल जाता है बनिस्बत जानवरों के गोश्त के। इस तरह अजनास और सब्जियां भी बहरी जहाज़ों पर कम इस्तेमाल की जाती हैं। ज़्यादातर मछली ही खाई जाती है। इस तरह जज़ायर जो खुश्की से दूर पाए जाते हैं, वहाँ पर भी मछली का कसरत से इस्तेमाल होता है। जज़ायर पर ज़राअत कम होती है और दूसरे ममालिक से डेयरी की मसनूआत, गोश्त, फल और सब्जियाँ दरामद करना खासा महंगा पड़ता है। बहुत सारी अशिया तो जज़ायर में पैदा ही नहीं होती हैं। इस वजह से अक्सर जज़ायर की मईशत माहीगीरी के गिर्द घूमती है। इससे उनका अव्वलीन मसला यानी खुराक हल हो जाता है। अगरचे मुझे उस जगह माहीगीरी होती महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि ये जजीरा कज़ाकों के एक बैनुल-अक़वामी गिरोह का मरकज़ नज़र आता था। उसके बावजूद ये लोग अपनी खुराक की अक्सरियत ज़रूरियात समंदर से ही पूरी करते होंगे, ताकि बैरूनी दुनिया पर इन्हिसार कम से कम हो। उसमें ख़तरात भी कम थे। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जजीरे पर कम से कम 6-7 हज़ार नफूस आबाद थे, और इतनी बड़ी आबादी को बैरून मुल्क से खुराक मुहैया करना आसान काम नहीं था, बल्कि कज़ाकों के लिए उसमें ख़तरात भी पोशीदा थे। उनके लिए आफियत इसमें थी कि बाहर से कम रब्ता रखें, ताकि दुनिया उनकी तरफ मुतवज्जो न हो। खिलाफ तवक्को मछली ज़ायक़ेदार साबित हुई थी, और कॉफ़ी भी स्याह होने के बावजूद मज़ा दे गई थी। नाश्ता करके मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया और जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे दोबारा जगाया गया तो शाम हो रही थी। मुझे डॉक्टर वाडिया की सूरत नजर आई। इस बार खिलाफ तवक्को उसने खामोशी से जख्मों की मरहम पट्टी की और रुखसत हो गया। मैंने भी बात करने की कोशिश नहीं की। उसके जाने के बाद मैंने सिल्वर के मग्गे से दरवाज़ा बजाया। गार्ड फौरन आन मौजूद हुआ। क्या बात है? उसने घुरा कर पूछा। मुझे हाजत महसूस हो रही है। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर चला गया। चंद मिनट के बाद एक और शख्स उसके साथ आया, जो मुसल्ला नहीं था। उसने आकर ताला खोला और मुझे बाहर निकालकर दोबारा ताला लगाया और साथ आने का इशारा किया। इस दौरान में गार्ड राइफल ताने पूरी तरह चौकस था। वो हमारे साथ ही रहा। बैरक के बाहर एक छोटा सा बाथरूम था। ये बमुश्किल 3 बाय 3 फुट का और 6 फुट ऊंचा था। मैंने हर बैरक के सामने ऐसा ही एक बैतुल खला देखा था। अंदर अगरचे बदबू थी, लेकिन ये किसी हद तक साफ सुथरा था। उसमें अंदर से दरवाज़ा बंद करने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक मामूली सा खटका था जो बाहर से भी खोला जा सकता था। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, गार्ड के साथ आने वाले शख्स ने कहा। मैं बाहर निकला तो उन्होंने इसी तरह मुझे लाकर कोठरी में बंद कर दिया। 2 दफ़ा मरहम पट्टी के बाद जख्मों में तकलीफ खासी हद तक कम हो गई थी। अंधेरा छाते बैरक की राहदारी में नस्ब तेज रोशनी वाले बल्ब रोशन हो गए। सेल्स में कोई बल्ब नहीं लगा था, बल्कि सलाखों से रोशनी गुजरकर यहाँ उजाला करती थी। आमतौर से जेलों में भी बल्ब और बिजली के स्विच कैदियों की रसाई से दूर रखे जाते हैं। रात का खाना भी मछली और दलिया नुमा सी चीज़ पर मुश्तमिल था। अभी मैं खाने से फारिग हुआ ही था कि सेल का दरवाज़ा खुला और मुझे जॉन ग्रे की सूरत नजर आई, जो मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था।
مشتعل افراد اگر ہجوم کی شکل میں ہو تو تباکن قوت بن جاتے ہیں۔ ایسے ہجوم منٹوں میں ہاتھی کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہجوم تو نہیں تھا، لیکن بیک وقت 6-7 افراد سے مقابلہ کرنا دشوار کام تھا۔ حسن نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، مسز شہزاد آپ انہیں بتائیں۔ رک جاؤ، عورت چلائی اور وہ چابی سے چلنے والے کھلونوں کی طرح رک گئے۔ حسن علی نے عورت سے کہا، مجھے معلوم ہے اس کے قاتل وہی لوگ ہیں اور میں ان کو بچ کر جانے کا موقع نہیں دوں گا، چلو خان۔ آخری الفاظ اس نے مجھ سے کہے تھے، پھر ہم لوگوں کے درمیان سے نکلتے چلے گئے۔ ہم نے عورت کے صدمے اور لوگوں کے تذبذب سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر ان لوگوں کو تھوڑی مہلت اور مل جاتی تو عورت کے سامنے بات کھل جاتی کہ شہزاد کہیں غائب نہیں ہوا بلکہ اپنے ہی گیراج میں اپنے میکینک لڑکوں کے ساتھ مارا گیا تھا۔ یہ بات کھلتے ہم عورت کی نظروں میں مشکوک ہو جاتے اور عین ممکن تھا کہ وہ ہمیں قاتل یا ان کا ساتھی قرار دے دیتی۔ اس کے بعد وہاں سے نکلنا ہمارے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو جاتا۔ بہرحال عورت سے ہمیں ایک کام کی بات معلوم ہو گئی تھی، یعنی بابو بھائی کا نام ان نامعلوم افراد کو بابو بھائی ہی شہزاد خان تک لایا تھا۔ اسے دستے قاتل کی مدد کرنے کا انعام یہ ملا کہ اسے بھی قاتل نے خاموش کر دیا تاکہ اس کی طرف کوئی انگلی اٹھانے والا باقی نہ رہے۔ مجھے تو بابو بھائی کی خیریت بھی مشکوک لگ رہی ہے، میں نے نیچے آتے ہی کہا۔ وہ لوگ خاصے تیز جا رہے ہیں، شہزاد خان کے گیراج کی طرف چلو۔ حسن نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، استاد محترم، میں کرا کر بولا، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے اور میں نے دوپہر سے سوائے مار اور دھکوں کے کچھ نہیں کھایا۔ 3 لاشیں دیکھ کر بھی تمہاری بھوک برقرار ہے کیا؟ حسن نے سرسری سے لہجے میں کہا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں چوتھی لاش بن جاؤں؟ بادر ناخواستہ حسن نے گاڑی ایک رات بھر کھلے رہنے والے ہوٹل کے سامنے رکوائی۔ پیٹ بھر جانے کے بعد مجھ پر نقاہ طاری ہونے لگی تھی۔ کیا خیال ہے باقی کا کام کل پر نہ چھوڑ دیا جائے؟ میں نے تجویز پیش کی تو حسن نے مجھے گھورا، کیا فائدہ کل بھی آ کر ایک یا کئی لاشوں کا نظارہ کرنے کا؟ اگر پاپا یہاں ہوتے تو اب تک پولیس ان لوگوں کو گردن تک پکڑ چکی ہوتی۔ حسن مسکرا دیا، میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ ابھی ہم جو کوشش کر رہے ہیں جمشید صاحب شاید اس کی اجازت بھی نہ دیتے۔ بھلا پاپا کیوں نہیں چاہتے کہ مجھ پر حملہ کرنے اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والے نہ پکڑے جائیں؟ یک دم حسن محتاط نظر آنے لگا۔ اس نے ایک نظر ڈرائیو کرتے شخص کی طرف دیکھا اور بولا، بھائی پھر جمشید صاحب اس معاملے کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیتے، وہ لوگ اب تک پکڑے جا چکے ہوتے۔ میں نے محسوس کیا کہ حسن علی نے بات بدل دی تھی۔ پہلے اس کا لہجہ کچھ اور تھا اور اب اس کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ حسن علی نے گاڑی مقتول شہزاد خان کے گیراج سے کچھ فاصلے پر رکوائی۔ وہاں اب بھی رونق تھی، لیکن لوگوں میں خوف کے اثرات بھی تھے۔ آس پاس کی اکثر دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ ان کے آگے لوگ ٹولیوں میں کھڑے تحریر قتل پر سنسنی خیز تبصرے کر رہے تھے۔ ہم ان کے پاس سے گزرے۔ پولیس جائے واردات سے لاشیں اور دیگر شہادتیں لے کر جا چکی تھی۔ اس نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ حالانکہ لاشیں دریافت ہوئے 2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرے تھے اور بعض اوقات تو پولیس جائے واردات پر آنے میں اتنی دیر لگا دیتی ہے۔ گیراج سیل کر دیا گیا تھا اور اس کے آگے ایک سپاہی اپنی بندوق کے ساتھ کرسی پر بیٹھا بھگتنے کے انداز میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ لگتا ہے پولیس نے بھگتایا معاملے کو، میں نے حسن سے سرگوشی میں کہا۔ مجھے بھی شبہ ہو رہا ہے، شاید اوپر سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں۔ حسن علی نے سر ہلایا۔ ساتھ آنے والے ماہر جغرافیہ کو ہم نے گاڑی میں ہی چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اب ہم آزادی سے بات کر سکتے تھے۔ میں نے کہا، کیا پاپا ہوتے تو وہ ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنے سے روک دیتے جنہوں نے مجھے اور ماپارا کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی؟ حسن نے سر ہلایا۔ میرا یہی اندازہ ہے کہ اس کوشش میں کچھ ایسے افراد ملوث ہیں جن پر ہاتھ ڈالنا جمشید علی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ میں چند لمحوں کے لیے چپ ہو گیا۔ آپ کا مطلب کہ ان افراد کا تعلق پہلے سے بھی ہو سکتا ہے؟ حسن نے یوں شان اچکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ جو تم چاہو وہ سمجھو۔ وہ سڑک کے ساتھ قائم ایک ہوٹل میں گھس گیا۔ یہ ایک ایرانی ہوٹل تھا جہاں سوائے چائے اور پیسٹری کے کچھ نہیں ملتا تھا۔ میری دیواروں پر ایران کے مناظر کی تصاویر لگی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے شہنشاہ ایران کی تصویر آویزہ تھی۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اس قسم کے گندے اور معمولی درجے کے ہوٹلوں کو ایرانی ہوٹل کیوں کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایران والا ان ہوٹلوں کو دیکھ لے تو پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کو دھچکا لگے بغیر نہ رہے گا۔ ٹیپ پر کوئی ایرانی مغنیہ مترنم لہجے میں گا رہی تھی، غالباً جامی کا کلام تھا۔ ماپارا نے مجھے ایرانی ادب سے خاصا روشناس کرا دیا تھا۔ بیرے نے پوچھے بغیر ہمارے سامنے 2 چائے لا کر رکھ دی۔ چائے کی بجائے دودھ پتی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ روبوٹ کی طرح چلنے والا ویٹر وہاں سے روانہ ہوتا، حسن نے اس کے ایک ہاتھ پر 10 روپے کا نوٹ رکھ دیا۔ وہ وہی منجمد ہو گیا۔ کیا چاہیے صاحب؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ بابو بھائی کہاں ملے گا؟
कौन बाबू भाई? बाबू, ऑटोज वाला बाबू भाई। हसन ने दूसरा नोट उसके हाथ में थमाया। अच्छा वो? पता नहीं, ये कहना मुश्किल है कि इस वक्त कहाँ होगा। बैरे ने सर खुजाया। उसके हाथों से नोट गायब हो चुके थे। हसन ने उसे तीसरा नोट दिया। अब तो आसान हो गया ना? आप नौरोज में देख लीजिएगा, वरना सनीमा वाली गली के थड़े पर मिलेगा। ये दोनों जगह कहाँ हैं? अगर आप मुझे 100 रुपया दें तो मैं आपको उन दोनों जगहों पर ले जा सकता हूँ। बैरे ने यारी से कहा। उसने जान लिया था कि हम उस इलाके में अनजाने थे, लिहाजा उसने मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। बिला वजह आप भटकते फिरेंगे या दूसरों से पूछना पड़ेगा? ठीक है, तुम्हें 100 रुपये मिल जाएंगे। हसन बैरे की यारी पर मुश्तैल हो रहा था। साहब, पहले पैसे दे दें तो मेहरबानी होगी, बाद में आपने ठेंगा दिखा दिया तो मैं क्या करूँगा? गुस्सा जब्त करते हुए हसन अली ने बादल नाखास्ता उसे 100 रुपये दे दिए। नोट जेब में रखकर वो बोला, आप बाहर मेरा इंतज़ार करें, मैं भी 10 मिनट में आया। 100 गज पहले मेरी गाड़ी खड़ी है, नीले रंग की नए मॉडल की टोयोटा कार है, वहीं आ जाना। गाड़ी की ज़रूरत नहीं साहब, पैदल का रास्ता है, चंद मिनट लगेंगे। बैरे को खतरा था कि कार में बैठना उसके लिए मुसीबत बन सकता है, इस वजह से वो अय्यार आदमी पैदल चलने पर इसरार कर रहा था। हसन अली को उसकी बात मानना पड़ी थी, अगरचे अंदर से वो खौल रहा था। मुझे लग रहा था उस बैरे की शामत आने वाली थी, जिसने ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश की थी। वो 10 के बजाय 15 मिनट बाद बाहर आया। रात के उस पहर भी होटल की रौनक में कोई कमी नहीं आई थी। वो यकीनन किसी बहाने से कुछ देर की छुट्टी लेकर हमारे साथ निकला था। उस वक्त तो मेरे तैश की हद ना रही जब सिर्फ 2 गलियों के बाद उसने हमें गली के नुक्कड़ पर रोका। मैं नौरोज देख कर आता हूँ, वो कोने पर होटल है। ये कहकर वो गली में घुस गया। ये खबीस सज़ा का मुस्तहक उस्ताद मोहतरम, बेईमानी की हद कर दी इसने। मैं गुस्से से बोला, फिक्र मत करो, तुम देखना मैं इसके साथ करता क्या हूँ। कुछ देर के बाद वो आता नजर आया। उसकी खिली बातें बता रही थी कि वो कामयाब रहा है। तुम लोग जाओ, बाबू भाई वहीं मौजूद है। तुम कहाँ जाते हो? हसन अली ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, अब चलकर बाबू भाई से हमारा तारुफ करा दो। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? बाबू भाई को पता चल गया ना तो वो मेरी खाल उतरवा लेगा। बेटा, रकम ऐसे ही नहीं मिल जाती। हसन ने मुस्कुराकर कहा, खैर, बाबू भाई ने अगर पूछ लिया तो मैं बता दूंगा कि तुमने 100 रुपये बल्कि 130 रुपये लेकर उस तक हमारी रहनुमाई की थी। बता दो, मैं डरता नहीं किसी से, साफ मुकर जाऊंगा। बैरे ने कहा और फरार हो गया। ये क्या, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? ऐसे ही कहा। हसन ने अपनी जेब से एक अदद बटुआ निकाला। अभी वो अपनी किस्मत को रोता वापस आएगा तो उसे यहाँ सिर्फ बटुआ पड़ा मिलेगा। उसने बटुए से सारी रकम निकाल ली। बैरे ने आज अच्छी खासी टिप हासिल की थी, अब आएगा ना मज़ा, मैंने खुश होकर कहा और हसन अली ने बटुआ वहीं फेंक दिया। हम आगे बढ़ गए।